जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जाना वाला शिवरधारी गोपी जाना वाला शिवरधारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी गोपी जाना वाला शिवरधारी गोपी जाना वाला शिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जाना वाला शिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर
Bhaktivinoda application. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram. Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo. Haribo. Jai Ho, Mr. Bhagwan, Goenke, Sabeshna, Bhaktivedanta Swami, Sri Prabhupada Maharaj ki, Shri Gaurandai ki, Shri Krishna Balaram ki, Shri Ram Sundara Lata Vishaka ki. All glory to this Madhuri. All glory to this Madhuri. All glory to this. All glory to Sri Guru and Sri Guru. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay before. You want to try to take that? We were okay before, we spoiled it. Trying to get it back straight. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 7th Skand, 5th Adhyay, Shloka 51. So you heard, the Hindi class is being done in the temple room today, and the English in the Balaram Hall, but this is only for today, not every day. Okay.
Hare Krishna. Sorry, I was trying to fix up this cushion in the back because the people have to wait back. Is the verses on the board? Yes. Okay. Tateti Guru Putroktam Anujeve Yadam Abrave Dharmo Yasyo Padestava Rajam Yo Riha Medina Tateti Guru Puktayam Tateti Guru Putra Puktam Anujai Vedam Abravet Dharmo Yaso Padeshtava Rajan Yoga Meritnam Tateti Guru Putroktam Anujayedam Abravet Dharmo Yasyo Padeshavyo Rajan Griha Medinam Mataji. शब्दार्थ तथा इस प्रकार से इस तरह गुरुपुत्र उत्तम शुक्राचार्य के पुत्रों संत तथा अमर द्वारा सलाह दिए जाने पर अनुज्ञाय मानकर इदम यह अब्रवीत कहा धर्म कर्तव्य निसंदेह अस्य प्रहलाद को उपदेशव्य उपदेश देना चाहिए। राज्ञा राजाओं के यह जो गृह में गृहस्थ जीवन में जिनकी रुचि है। अनुवाद और तात्पर्य अभय चांद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद आप सभी हमारे पीछे दोहराएंगे। अपने गुरुपुत्र संत तथा अमर के इन उपदेशों को सुनकर हिरण्यकश्यप राजी हो गया और उनसे प्रहलाद को
इस वृत्तिपरक धर्म का उपदेश देने की प्रार्थना की, जिसका पालन राजसी गृहस्थ परिवार करते हैं। तात्पर्य, हिरण्याकशिपु चाहता था कि प्रहलाद महाराज देश या विश्व का शासन चलाने के लिए कूटनीतिक राजा के रूप में प्रशिक्षित हो, न कि संन्यास आश्रम के लिए उपदेश प्राप्त करें। धर्म शब्द किसी धार्मिक विश्वास के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ। जैसा कि स्पष्ट कहा गया है, धर्मो हि अस्योपदेष्टव्यो राज्ञामियो गृहवेदिनम्। राजाओं के परिवार दो प्रकार के होते हैं। पहले वे जिसके सदस्य गृहस्थ जीवन से आसक्त रहते हैं, और दूसरे राजर्षि कहलाते हैं। राजर्षि अर्थात वे राजा जो शासन के रूप में शासन करते हैं, शासक के रूप में शासन करते हैं, किंतु साथ ही ऋषि भी होते हैं। प्रहलाद राजर्षि बनना चाहते थे, किंतु हिरण्याकशिपु उसे इंद्रिय भोग आसक्त राजा बनाना चाहता था, गृहवेदिनम्। इसलिए आर्य प्रणाली में वर्णाश्रम धर्म होता है। श्री श्री गौनिताय की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री राधा श्याम ललिता की जय। इसलिए आर्य प्रणाली में वर्णाश्रम धर्म होता है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपने वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के अनुसार शिक्षा प्राप्त करता है। भक्ति से पवित्र हुआ भक्त सदैव संसारी गुणों से ऊपर दिव्य स्थिति में रहता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज तथा हिरण्याकशिपु में यह अंतर था कि हिरण्याकशिपु चाहता था कि प्रहलाद संसार में लिप्त रहे, किंतु प्रहलाद तो प्रकृति के गुणों से ऊपर थे। जब तक कोई प्रकृति के बस में रहता है, तब तक उसका वृत्ति पर कर्तव्य या धर्म उस व्यक्ति से भिन्न होता है जो प्रकृति के बस में नहीं होता। मनुष्य के असली धर्म का वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जैसा धर्मराज या यमराज ने अपने आदेश पालक से कहा था, जीव आध्यात्मिक सत्ता है, अतएव उसका वृत्ति पर कर्तव्य धर्म भी आध्यात्मिक है। वास्तविक धर्म तो वह है जिसका उपदेश भगवत गीता में हुआ है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक धर्म का परित्याग उसी तरह कर दे जिस प्रकार उसे भौतिक शरीर का परित्याग करना होता है। चाहे किसी का धर्म हो, यहाँ तक कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भी हो, उसे उसका परित्याग करके अपने आध्यात्मिक कार्य में लग जाना चाहिए। मनुष्य के असली धर्म का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण का नित्यदास है। यही मनुष्य का असली धर्म है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वं। वन्देऽहं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तुम आप इस समय भागवतम के 7वें स्कंद का अध्ययन कर रहे हो, जहाँ की आपको प्रहलाद महाराज की शिक्षा और लीलाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। और एक समाज में हम सोचते हैं ये व्यक्ति हमारा हीरो है। कभी कोई हम कोई स्पोर्ट्समैन को हीरो बना देते हैं। तो आपको सुनाई दे रहा है पीछे? नहीं दे रहा। उधर सुनाई दे रहा है? कैनॉट। इधर सुनाई दे रहा है? हम इंजीनियर पर हुए थे, इंजीनियर फिक्स इट अप। तो ये तुमको सुनाई क्यों नहीं दे रहा? ओके। तो भौतिक संसार में अब सुनाई दे रहा है? भौतिक समाज में हम सोचते हैं कोई राजनीतिक नेता हमारा हीरो है, कोई फिल्मी कलाकार हमारा हीरो है, पर आध्यात्मिक क्षेत्र में हम भगवान के भक्तों को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं। पर भक्तों में कौन है? एक प्रहलाद महाराज। भगवत में कहा गया है 12 महाजन स्वयं नादा शंभु कौमार कपिलो मनु प्रहलाद जन को भीष्मो बलि हुआए ऐसा केवल। तो प्रहलाद महाराज हैं भगवान के प्रिय भक्त। और आप इस अध्याय में पढ़ते हो कि हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गए थे। उन्होंने जब देखा कि उनके बेटे का आकर्षण कि भगवान के प्रति बढ़ते जा रहा है। पिता का प्रयास था कि बेटा विष्णु का शत्रु बने। और जब सदनारायण का कौन थे? शुक्राचार्य के पुत्र। तो जब और ये प्रहलाद के अध्यापक थे, देवर प्रहलाद टीचर्स, और उन्होंने कहा था चिंता मत करो, हम तुम्हारे बेटे का दिमाग बिल्कुल बदल देंगे। तो कुछ दिनों के बाद सदनारायण का प्रहलाद को लेकर पिता के पास पहुँचे और प्रहलाद ने प्रणाम किया, जिसके द्वारा उनके पिता का हृदय नरम हुआ। और पिता ने परीक्षा ली, ये बताओ तुम्हारे पाठशाला में इतने विषयों का अध्ययन होता है, सबसे प्रसिद्ध क्या ज्ञान तुमने प्राप्त किया है? Tell me, what is the best of all the education that you have received? तो प्रहलाद ने क्या बोला? नवदा भक्ति का ज्ञान। शौरम किसी अश्विन पाद सेवन। तो जब हिरण्यकशिपु ने नवदा भक्ति का ज्ञान सुना तो उसे बड़ा क्रोध आया और उन्होंने प्रहलाद को जहाँ अपने गोद में बिठाया था उसे उठाकर क्या किया? फेंक दिया। तो सदनारायण ने देखा कि हिरण्यकशिपु खुश नहीं है कि उनके बेटे का आकर्षण बढ़ते जा रहा है विष्णु के प्रति। तो यहाँ आगे जाकर सदनारायण का क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम आपके बेटे को ऐसा ज्ञान देंगे कि वो भूल जाएगा विष्णु की खूबसूरती को। तो सदनारायण का शुक्राचार्य के बेटे थे। और इस श्लोक में आप पढ़ते हो कि जब
हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर डांटा धर्मराज को। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला हम तुम आपके बेटे का दिमाग बिल्कुल बदल देंगे, वो विष्णु का शत्रु बन जाएगा। तो भक्त और अभक्त में क्या अंतर है? प्रभुपाद इस विषय की चर्चा करते हैं इस तालपे में। भक्ति और अभक्त में अंतर ये है, भक्त चाहता है सदा भगवान की सेवा हो, और अभक्त चाहता है सदा सुविधा रहे नेतृत्व कार्य के लिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि दो प्रकार के भक्त होते हैं, और जो शासन करते हैं, जो राजा होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। वैसे हमारे वैदिक साहित्य में डेमोक्रेसी का कोई स्थान नहीं है, वहाँ का क्या है? राजऋषि। तो एक है भौतिक ज्ञान जो आप प्राप्त करते हो भौतिक स्थानों से, और दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान, तो जिसे कहते हैं राजऋषि। हमारे शास्त्रों में आप अनेक राजाओं को पढ़ते हो, जो राजा भी थे और ऋषि भी थे। राजा थे, राजा के खानदान में जन्म लिया था, और ऋषि भी थे। ऋषि का क्या मतलब? उन्हें ये ज्ञान भी था जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं तात्पर्य में कि वर्णाश्रम धर्म का पालन होना चाहिए शास्त्रों के आधार पर, ये है सबसे आवश्यक। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं समाज का विभाजन होना चाहिए, 4 वर्ण और 4 आश्रम, और हर वर्ण हर आश्रम में हमारा भाव ये होना चाहिए कि हम परम भगवान के शरणागत हों। तो चतुर्वर्णमय सिस्टम गुना कर्मा विभाग, भगवद गीता में क्या कहा गया? कर्मों के आधार पर निश्चित किया जाता है आपका वर्ण कौन सा है। तो उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति। आज समाज में आप देखते हो कि अनेक व्यक्ति सुविधा चाहते हैं, उनका जो आचरण है उसमें कमी है। जो वैदिक शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति राजा बनना चाहे या किसी प्रकार से भौतिक जिम्मेदारी उठाना चाहे, तो उसका आचार भी शास्त्र पर आधारित होना चाहिए, और शास्त्र पर आधारित होगा तो समाज भी सुखी होगी, समाज में सुख होगा। जैसे कि आप राम राज्य की चर्चा करते हो, आप ये राम राज्य की चर्चा करते हो, हाँ, और कुछ हफ्ते पहले आपने रामनवमी उत्सव मनाया था। तो भगवान राम की लीला में आप देखते हो कि जब भगवान राम का शासन था, समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, नो एंग्जाइटी एट ऑल, और समाज में हर व्यक्ति सुखी था, और हर व्यक्ति चुन सकता था उसके मृत्यु के समय। अगर आज आपको ये छूट दी जाए कि आप चुन सकते मृत्यु के समय, कोई चुनेगा ही नहीं। तो राम राज्य के समय हर प्रकार का सुख था, और मृत्यु भी आती थी पूछ कर। तो पापा जी कहते हैं तात्पर्य में कि ये राम राज्य का सुख हमें आज भी प्राप्त हो सकता है अगर हम भगवान की शिक्षा का पालन करें। तो यहाँ का आप पढ़ रहे हो कि पूरे तात्पर्य में पापा जी इस विषय की स्थापना कर रहे हैं कि ये आवश्यक है समाज में धर्म की शिक्षा का पालन हो। धर्मांतु साक्षात भगवत प्रेरणा। प्रभुपाद जी कहते थे अगर समाज में किसी चीज़ की कमी है तो किस विषय की कमी है? इस विज्ञान की कमी है। तो जो अध्यापक हैं उन्हें
ये समझना चाहिए कि हमारी आध्यात्मिक जिम्मेदारी क्या है। तो प्रहलाद के जो अध्यापक थे सुंदर मठ का, वो तो शुक्राचार्य के पुत्र थे और उनकी कर्मकांड में ही रुचि थी और इस मार्ग में जिसके द्वारा उन्हें भौतिक सुख प्राप्त हो। और जो शुद्ध भक्त हैं उनकी क्या रुचि रहती है कि शुद्ध भक्ति का ज्ञान दिया जाए। तो प्रहलाद महाराज ने हमें नवतम भक्ति का ज्ञान दिया है जो आप इस अध्याय में पढ़ते हो। और ये नवतम भक्ति का ज्ञान प्रहलाद ने कहाँ से प्राप्त किया था? कहाँ से? माता के घर में। हिरण्यकशिपु के विषय में अगर आज आप चर्चा करो किसी से और पूछो उनका क्या परिचय है तो 90% लोग कहेंगे असुर, डिमन, डिमोनिक। और ध्यान से देखा जाए, शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए, वो क्या थे? उच्च कोटि के भक्त थे और भगवान की इच्छा थी कि उनके भक्त सूर्य के रूप में अवतारित हो, भगवान की लीला को शोभा देने के। तो हिरण्यकशिपु वैसे तो असुर थे और उन्होंने जो तपस्या उठाई थी, उदाहरण के लिए वो मंदारा पर्वत में गए थे तपस्या उठाने के लिए, अपने पाँव के अंगूठे में खड़े हो रहे थे, हाथों को आकाश की तरफ, और इस पोजीशन में वो खड़े रहे कितनी देर के लिए? देवताओं के 100 वर्षों के लिए, देवताओं के 100 वर्षों के लिए। और आज आपके समाज में मान लो कोई प्रसिद्ध योगी हो, रामदेव या कोई भी, तो उनसे आप पूछो आप अपने योगा पोज में कितनी देर खड़े रह सकते हो, और आपको कोई नहीं मिलेगा तो देवताओं के इतने लंबे सफ़र के लिए खड़े हो सकते। तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हिरण्यकशिपु के पास खास शक्तियाँ थी। आप भक्त ने कल निर्जल रखा, आज सुबह निर्जल छोड़ा, तो आप में से कितने भक्तों ने निर्जल रखा था? ओके, वेरी गुड। तो हिरण्यकशिपु ने भी निर्जल रखा था, और आपके समान एक दिन के लिए नहीं, उन्होंने रखा था for 100 celestial years, देवताओं के 100 वर्षों के लिए उन्होंने एक बूंद पानी का नहीं पिया। एक अंदाजा लगाओ, ये कोई साधारण कार्य है? तो ये थे हिरण्यकशिपु। तो जब वो अपनी तपस्या कर रहे थे तो देवताओं को ने सोचा अब इसके पति के गर्भ में एक बच्चा है, ये राक्षस ही निकला है। कहते हैं ना, जैसा बाप ऐसे बेटा, कई बार ठीक निकलता है, कई बार गलत निकलता है। तो उनके मन में ये डर था। तो ये साथ मुझे वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा तुम घबराओ मत, इस औरत के घर में एक बड़ा महान भक्त है जिसको अगर तुम मारना भी चाहो तो मार नहीं सकोगे। तो उन्होंने देवताओं को कहा ये छोड़ दो। उन्होंने अपने आश्रम में उनको रहने का स्थान दिया। तो और नारद ने क्या किया? दिव्य ज्ञान दिया। तो प्रहलाद तो भूल गए थे, सॉरी, प्रहलाद की माँ तो भूल गई थी दिव्य ज्ञान जो प्राप्त हुआ था, और प्रहलाद नहीं भूले। इसलिए कि वो पाठशाला में थे, वो अपने साथियों को क्या दे रहे थे? ज्ञान। और हिरण्यकशिपु कुछ समझ नहीं आई, मेरे बेटे को कौन ये दिव्य ज्ञान दे रहा है? और वो डांट रहे थे। किसे? संदर्भ को। संदर्भ ने कहा आप हमें मत डांटो, हम ब्राह्मण हैं, हमें खुद ही समझ आता है कौन इसे शिक्षा दे रहा है। तो प्रहलाद ने तो ज्ञान
पहले ही प्राप्त कर लिया। और यही प्रहलाद जब उसके पिता ने देखा कि ये सब होते हुए भी, इतनी शक्ति दिखाते हुए भी उसकी आचरण है, आकर्षण है विष्णु के प्रति, उन्होंने क्या निर्णय किया, इसका वध हो जाना चाहिए। और जो कठिनाई प्रहलाद को सहना पड़ा, उसका छोटा हिस्सा भी हमें से किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। कई बार हम कहते हैं इसी का सेवा बड़ी कठिन है, वो बड़ा प्रहलाद जो है उन्हें बड़ी अधिक तपस्या का पालन करना पड़ा। उदाहरण के लिए उनके पिता ने अपने असुरों के द्वारा क्या किया, फेंक दो इसे पहाड़ की चोटी से, हाथी चले झेल खिलाएगा। जब भी भगवान ने उनकी सुरक्षा की, आप जानते हो ये कहा गया है, राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे। और भगवान कहते हैं गीता में, हे अर्जुन तुम सारे विश्व को सूचना दो, क्या कौन से पद जानी हमें भक्ति प्रदर्शित। तो जब भक्ति में जुड़ते हैं, हमारे मन में किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए, हमारे मन में ये विचार नहीं होना चाहिए ठीक है या गलत है, इस मार्ग में रहें नहीं रहें। और जब तक ये डाउट रहेगा, आप दृढ़ होकर सेवा नहीं करोगे, आप भक्ति में उन्नति नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हम सब सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण। तो इसका अर्थ क्या है? आप बार बार लगभग रोज ही श्लोक को सुनते होंगे क्लास में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है संक्षेप में कि हमें तन मन धन से भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये जो इंद्रियां हैं, इनका हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं और सदुपयोग भी कर सकते हैं। दुरुपयोग करोगे तो एक परिणाम प्राप्त होगा, और सदुपयोग करोगे तो दूसरा परिणाम प्राप्त होगा। जैसे जो भक्त जुड़ते हैं कृष्ण भक्ति में, उनका क्या भाव रहता है कि इंद्रियों का उपयोग किया जाए भगवान की सेवा में। भागवत में आप पढ़ते हो 10वें स्कंद में कुबेर और मणिग्रीवा की कथा है। कुबेर और मणिग्रीवा उनके पिता का कौन थे? कुबेर, देवताओं के खजांची। तो आप साधारण समाज में भी देखते हो, अमीर घराने के व्यक्ति जल्दी बिगड़ जाते हैं। तो इतने बिगड़ गए थे कि जब उन्होंने देखा महान संत नारद मुनि को आते हुए, तो औरतों ने तो अपने नंगे शरीर को ढक दिया, पर जो ये मणिग्रीव और उनके भाई थे, उन्होंने अपने शरीर को मणिग्रीव नहीं ढका। तो नारद मुनि ने सोचा कि इन्हें कुछ उपदेश दिया जाए। जो भक्त है अगर किसको डांटता भी है तो डांटता है भलाई के लिए। नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम देवताओं के 100 वर्षों के लिए क्या बन जाओ, पर किसी विशेष स्थान में नहीं, पर नंद महाराज के आंगन में। जैसे कि आपके मंदिर में ये दिमाग का पेड़ है, बड़ा भाग्यशाली है, सुबह से रात तक हरिनाम भी सुनता है, हर आरती में आता है। अब एक आरती में आते हो और सोच आपका कोटा हो गया। ये वृक्ष हर आरती में आता है, राधा श्याम सुंदर का दर्शन प्राप्त करना है। तो एक रूप से ये श्राप थी, पर ये था
इनके उद्धार के लिए। सो जब देवता 100 वर्षों के पश्चात भगवान ने ये जो दामोदर लीला पढ़ते हो, इसके 2 भाग हैं। एक भाग तो आप पढ़ते हो जबकि भगवान ने अपनी माँ को पालने दिया, और दूसरा भाग है क्या, जब भगवान ने अब पेड़ को गिराया, पेड़ से क्या निकले, मनुष्य और तो फिर भगवान ने इन्हें शिक्षा दी। तो जब इनका उद्धार हुआ, जब उन्होंने कहा कि अब से हमारी इंद्रियां सदा आपकी सेवा में रहें। दूसरे शब्द में अज्ञानता में पहले उन्होंने गलत काम किए थे, पर अब जो नारद मुनि की शिक्षा से, कृपा से उन्हें भगवान का दर्शन भी प्राप्त हुआ है और उन्हें शिक्षा भी प्राप्त हुई है। उन्होंने क्या कहा, अब से हमारी ये प्रार्थना है कि हम हमारी इंद्रियों का सदा उपयोग करें, किस लिए, भगवान की सेवा। तो ये होना चाहिए हम सबका भाव कि अज्ञानता में हम सब ने अनेक गलत कार्य किए होंगे। कभी अब भक्ति में जुड़े हैं, हमारा क्या भाव होना चाहिए, केवल हम मन और बुद्धि इंद्रियों को उपयोग करें किसमें, भगवान की सेवा में। और ये है साधु संग का परिणाम। साधु संग में रहोगे तो आपके दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे धनकुमार और मणिग्रीव, उनको उद्धार हुआ किसकी कृपा से, नारद मुनि की सेवा। तो साधु संग सर्वशास्त्र लाभ मात्र, साधु संग सर्वसिद्धि। शास्त्र में कहा गया है साधु संग का लाभ उठाओ, और साधु संग का लाभ उठाओगे फिर दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। तो प्रहलाद महाराज, उनका ऐसा भाव था कि सबका उद्धार होना चाहिए, और प्रहलाद महाराज सदा ये प्रयास करते थे कि उनके साथियों को क्या प्राप्त हो, दिव्य ज्ञान प्राप्त। प्रहलाद के जो पिता थे वो दुखी थे ये देखकर। प्रहलाद और डिटरमिन्ड, दृढ़ होकर भगवान की सेवा करते जा रहे थे। रूपा गोस्वामी कहते हैं भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, उत्साह निश्चय धार्य सत्य कर्म प्रभुता संग त्यागे सतोहृदय सर्वीर भक्ति पुरस्कृति। क्या हम भक्ति में सफलता चाहते हैं तो मैं क्या, वी शुड बी डिटर्मिन्ड टू स्टे ऑन डिवोशन। तो प्रहलाद के पिता का सदा यही आदेश था कि मेरे बेटे को भगवान को बुला लो, और हालांकि उन्होंने इतना प्रयास किया वो असफल थे। तो जो व्यक्ति दृढ़ होकर भगवान की सेवा में जुड़ता है, भगवान उनकी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो अगर समाज में किसी विषय की कमी है तो बाबा जी क्या कहते थे, इस विषय की कमी, इस दिव्य ज्ञान की कमी, इस दिव्य ज्ञान की कमी है। तो इसे हम देखते हैं कि समाज का क्लेश, चिंता, तनाव बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है। जैसे कि पिछले 2 सालों में सारे विश्व की प्रजा और खास करके भारत में आपको अचानक हुआ है किसका, वो वायरस का। और जब फेज हो रही वायरस का आया था तो जल्दी उसका प्रभाव समाप्त हो गया, तो सब खुश थे, चलो वायरस आई अब खत्म। फिर उन्हें सूचना मिली फेज 2 आ रहा है, तो उन्होंने और तैयारी की। वो फेज 2 में अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई, कोई बीमारी हुई। तो फिर हमारे वैज्ञानिकों ने क्या कहा, नाउ यू हैव वैक्सीनेशन, दैट वाज ऑल आवर प्रॉब्लम। तो सब वैक्सीनेशन के चक्कर में है। अमेरिका में राष्ट्रपति ने कहा जिस व्यक्ति ने वैक्सीनेशन ले लिया है
उसे मास्क पहनने की वही जरूरत है। हम मास्क पहनते हैं पर पहनना पसंद है सबको, पर हमें पहनना चाहिए। मैं देखा अनेक व्यक्तियों के पास मास्क नहीं है, मास्क पहनना चाहिए क्योंकि विज्ञानी कह रहे हैं इसका लाभ है। तो अब सेकेंड फेज में आया और वो भी लोग सोच रहे थे वही जा रहा है। अब सूचना मिलती है कि तीसरा फेज आने वाला है और अब लोग तीसरे फेज की तैयारी कर रहे हैं। तो भौतिक संसार में एक समस्या हल होगी और अगली समस्या पैदा होगी। तो अगर आप सोचते हो अब वैक्सीनेशन आ गए, अब सब समस्या हल हो जाएगी, आप देखोगे नहीं, हल एक समस्या जाएगी, अगली समस्या आएगी। प्रभुपाद ने कहा वी गिव स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन। तो आज समाज को किस प्रकार की वैक्सीनेशन की जरूरत है? स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन। सो स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन का क्या मतलब? हमें ज्ञान पहुँचाना चाहिए हर स्थान में। तो प्रहलाद महाराज को हीरो क्यों माना जाता है? एक कारण है कि प्रहलाद महाराज की बड़ी गहरी रुचि थी किसमें? कृष्ण भक्ति में। और भगवान क्या कहते हैं, जो भक्त है उसकी मैं सुरक्षा करता हूँ। तो भगवान ने हमेशा उसकी सुरक्षा की और उन्होंने भगवान के नामों का उच्चारण किया। नवदा भक्ति का जो ज्ञान है, जो आप परिचित हो, ये आरंभ कैसे होता है? श्रवणम कीर्तनम। आप साधारण समाज में भी देखते हो कि अगर आप किसी विषय के बीच बारे में सुनते हो बार बार, तो फिर आपका आकर्षण तो भौतिक समाज में आप देखते हो कि अगर हम किसी विषय का बार बार सुनेंगे तो उस विषय में रुचि बढ़ जाती है। तो नवदा भक्ति आरंभ होती है किसके साथ? श्रवणम और कीर्तनम के साथ। भगवान के नाम लेना और उसका उच्चारण करना। और ये जो श्रवणम कीर्तनम का मार्ग है, इसका उपयोग आप समाज के हर कोने में कर सकते हो। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी से आचे जाता नगरा देगा सर्वदा प्रचार हो। एक दिन विश्व के कोने कोने में यह नाम का उच्चारण होगा। तो पापा जी मिले थे अपने गुरु महाराज को 1922 में। तो उससे पहले उनके कई गुरु भाई सन्यासी वो भक्ति सिद्धांत जी के आदेश पर गए थे विदेशों में प्रचार महाप्रभु की शिक्षा की स्थापना के लिए, और बिना सफलता के वापस हो आए। तो हमारे वैष्णव भी सोच रहे थे हाँ ये भगवान की भविष्यवाणी तो है पर शायद सच नहीं निकले। पर भक्ति सिद्धांत जी, ठाकुर भक्ति नोद और जो महाचार्य थे, उन्हें पूरा विश्वास था क्या अगर ये भगवान की भविष्यवाणी है सत्य निकलेंगे। और जब भक्ति सिद्धांत जी मेरे प्रभात को पहली मुलाकात में ही उन्होंने क्या कहा, वो पहचान गए ये युवक जो ले जाएगा महाप्रभु के संदेश को विश्व के हर कोने में। और पहले ही मुलाकात में ही उन्होंने आदेश दिया। तो आज आप देखते हो विश्व के हर कोने में क्या लोग हरिनाम करें, क्योंकि जो हरिनाम है ये है उपाय इस कलियुग के कष्टों के लिए। कली काले नाम रूपा भगवान कलियुग में प्रकट होते किस रूप में? इस उनके देवी नामों के रूप में। तो हरिनाम माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने हृदय की मैल को दूर कर सकते हो। हम भक्ति की महिमा के विषय में तो पढ़ते हैं,
पर अगर आप सचमुच चाहते हो कि भौतिक आकर्षण से आप बचो, तो क्या है उपाय? ये नर्मदा भक्ति का ज्ञान उठाना। अगर इसका ज्ञान उठाएंगे, लाभ उठाएंगे, तो फिर इसका असर होगा। तो प्रहलाद महाराज यहाँ आप क्या पढ़ते हो कि प्रहलाद महाराज के जो अध्यापक हैं वो कह रहे हैं हिरण्यकशिपु को, आप घबराओ मत, असफल हुए थे, पर नाउ विल डू द मैजिक अगेन। हम फिर से उनके दिमाग को बदल देंगे। तो ये जो कृष्ण भक्ति का ज्ञान है, वो सातवें स्कंद में आप क्या देखते हो? ये ज्ञान बड़ी गहराई के साथ प्राप्त होता है, बड़ी गहराई के साथ बार बार ये उपदेश दिया जाता है। कई बार लोग पूछते हैं, आप लोगों के ग्रंथों में जो शिक्षा है आप बार बार पढ़ते हो, पर कोई नई चीज़ नहीं है आपके पास। तो या भागवतम क्लास में आते हो, आप सुनते हो गए कृष्ण इज सुप्रीम, माया इज बैड, वो जो सर्विस इज द ऑल्टरनेटिव। तो ऐसा क्या उत्तर दोगे? हम बार बार क्यों सुनते हैं? भागवतम में कहा गया है, नास्ता प्रेषु उपदेशु नित्यम भगवत सेव्य। भगवती उत्तम श्लोक है, भक्ति भगवती नहीं। अगर हम ध्यान से ये श्रीमद् भागवतम को सुनेंगे तो उससे के द्वारा क्या प्राप्त होगा? हृदय की मैल दूर होगी। आप भक्तों को शायद पता हो कि पिछले कई सालों से हमारे संस्था के भक्त भागवतम सेट्स को प्रमोट कर रहे हैं, है ना? What is that? The Bhagavatam set marathon. When did it start? When did the Bhagavatam set marathon start? Huh? Yeah, Bhadra Purnima. When is Bhadra Purnima this year? तो अब भद्रा पूर्णिमा में पिछले 5-6 सालों से हम भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन का मैराथन कर रहे हैं, आपको पता है ना। और ये भी शुरू हुआ, कईयों ने कहा कौन है इन भागवतम सेट्स को, पर आपको आश्चर्य होगा जानकर कि पिछले 6 सालों में जब से भद्रा पूर्णिमा का मैराथन शुरू हुआ है, हजारों की संख्या में ये भागवतम को पढ़ा जा रहा है। तो भागवतम में है क्या? सबसे उत्तम ज्ञान। व्यासदेव ने सारे शास्त्रों की वर्णन रचना की थी, और जब भी उन्हें लग रहा था मेरी रचना में कुछ कमी रह गई है, और जब उनके गुरु नारद मुनि मिले तो उन्होंने कहा कमी ये थी कि तुमने शुद्ध भक्ति पर केवल बल नहीं दिया, और इसके उत्तर में व्यासदेव ने हमने क्या दिया? निगामा कल्प गृह गलितम फलम, राइपन फ्रूट ऑफ वैदिक नॉलेज। ये जो भद्रा पूर्णिमा का मैराथन है, ये मैराथन है वेरी इम्पोर्टेंट। आप में से किन किन भक्तों ने भद्रा पूर्णिमा का मैराथन पहले किया? तो ये साल आप सब जुड़िए, और ये साल आप जानते हो इट्स वेरी स्पेशल फॉर अनदर रीज़न। क्या है स्पेशल? प्रभुपाद का 125th बर्थ एनिवर्सरी, और हमारी तो योजना थी ये 125th बर्थ एनिवर्सरी को बहुत लास्ट खेल में सेलिब्रेट करेंगे, पर समाज की स्थिति देखते हुए हम स्लोली कर रहे हैं। और आपको खुशी होगी कि भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा कॉइन रिलीज करने जा रही है प्रभुपाद जी के ऊपर, और उस कॉइन में इट्स सिल्वर कॉइन, प्रभुपाद जी की तस्वीर है। और ये कॉइन गवर्नमेंट से कराना कोई साधारण काम नहीं है, बहुत समय लगता है। और ये कॉइन अभी तैयार हो गया है, अभी गवर्नमेंट पूछ रही है कितने छापे, और उसकी एक की कीमत है कोई 4,500 रुपये।
तो आप में से आपके मंदिर में भी ये कॉइन दिखाएंगे, और आप में से जो लेना चाहो आप आपके अधिकारियों को, टेम्पल प्रेसिडेंट को बोल सकते हो, ये जो कॉइन है आप अपने घर में रख सकते हो, कि किसी मित्र को, रिश्तेदार को प्रेजेंट के रूप में दे सकते हो। एंड उस कॉइन में लिखा है 1896 to 1921। तो हम सबको सोचना चाहिए हम इस साल प्रॉपर के लिए क्या कर सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए जैसे बाकी समय जाता है वैसे ये साल में चले जाए। हमें सोचना चाहिए हम प्रॉपर के लिए, प्रॉपर की महिमा को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। और इनमें एक सेवा जो आप सब कर सकते हो वो है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, भागवतम का वितरण। और ये जो कॉइन्स हैं ये भी आप लेकर अपने मित्रों को, रोज़ दूसरों को बांट सकते हो। तो हर भक्त को सोचते रहना चाहिए हम इस साल प्रॉपर के लिए क्या कर सकते हैं। तो 125th एनिवर्सरी कोई छोटी एनिवर्सरी नहीं है, और हम सब की ज़िंदगी में तो एक ही बार ये आएगी। तो आप सब जुड़िए। और ये मैराथन में भद्र पूर्णिमा का जो है उसमें भागवतम को प्रमोट किया जा रहा है। और आज आपको जानकर खुशी होगी आपको श्रीमद् भागवतम में प्राप्त है लगभग हर प्रसिद्ध भाषा में, और भारत की हर प्रसिद्ध भाषा में क्या प्राप्त है श्रीमद् भागवतम। आप सब कुछ करोगे? आप सब अलग अलग मंदिर से आए हो तो आपको अपने मंदिर के अधिकारियों से चर्चा करनी चाहिए और वो पूछिए क्या सेवा है हमारे लिए ये 125th एनिवर्सरी को ज़्यादा सफल बनाने के लिए। तो आज के श्लोक में क्या पढ़ते हो? आपके श्लोक में आप पढ़ रहे हो कि संत का फिर से हौसला दिला रहे हैं किसे? हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु तो बहुत क्रोधित हो गया था, दुखी, और वो संत को डांटा था, इतनी बात तुम्हें बोला है, तुम लोग अपना काम नहीं कर रहे थे। तो संत का कह रहे हैं घबराओ मत, हम आपके बेटे को आपके प्रति आकर्षित करेंगे। और वो उपदेश देते गए। और तात्पर्य में प्रभा जी कह रहे हैं कि राज ऋषि जो समाज का राजा है, जो आपके समाज को निर्देशन दे रहा है, उसका क्या होना चाहिए? उसका भी चरित्र होना चाहिए। ये नहीं मुंह में राम राम और बगल में छुरी। जो नेता हैं उनका आचरण होना चाहिए शास्त्र के आधार पर। तो अगर नेता राज ऋषि का व्यवहार करेगा तो समाज में सब सुखी होंगे, समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। और पापा जी अनेक तात्पर्य में इस विषय का वर्णन करते हैं कि हमें समाज में क्या करना चाहिए, राज ऋषि को साबित करना चाहिए। तो आप पढ़ो और प्रचार करो, तो इसके द्वारा ये संभव हो सके। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षा अब हजारों बार सुन बैठे हो, नहीं ये तो नहीं आपको पहली बार तो ये शिक्षा नहीं दी जा रही, पहली बार सुन रहे हो आप? नो, देखो रोज़ सुनते हो, और रोज़ सुनते हो तो भी थकते नहीं। क्यों? क्योंकि ये है भगवान उनके भक्तों की लीला, और इन लीलाओं को आप कितनी बार भी सुनोगे क्या महसूस होएगा? लिटल। तो आप सब इस शिक्षा को अपनाओ, घर घर जाकर प्रचार करो, और इसके द्वारा प्रभु की महिमा बढ़ेगी। प्रभु जी कहते थे प्रचार बढ़ेगा उनकी महिमा भी बढ़ेगी। अगर हमारा आचरण शास्त्र पर आधारित हो तो उसका तेज असर पड़ेगा। आप प्रचार करते हो, हमारा आचरण भी होना चाहिए शास्त्र पर आधारित। चैतन्य महाप्रभु ने कहा सनातन गोस्वामी से, कईयों का आचार है और प्रचार नहीं। कईयों का प्रचार है
और अच्छा नहीं। राग में क्या है? दोनों एक बन है। प्रभु जी कहते थे ये होना चाहिए भक्तों में, आचार भी और प्रचार भी। So we should read, study, preach, and then you'll be happy. Hare Krishna. Okay. Any questions? Yes. Sorry for the late. जल्दी जल्दी। तो एक प्रश्न ये आता है कि मान जैसे हम बोलते हैं कि सेवा करना चाहिए, क्या? सेवा हम जो है अपने हिसाब से करना चाहते हैं, तो क्या ये सर्व धर्मांतरित में आता है? कैसे? इसको इंग्लिश में कहते हैं कंफर्ट जोन। हम सेवा करेंगे तो हमारी शर्त पर, अगर हमें ये नहीं दोगे तो हम सेवा नहीं करेंगे। महाराज ने पूरी भगवान के गोपाल विग्रह की स्थापना की थी। भगवान ने उन्हें कहा मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, मेरे लिए चंदन लेकर आओ। वो एकदम चल पड़े। हाँ, गोदान से। तो अगर कंफर्ट जोन में सेवा करना है तो इसमें लाभ मिलेगा, पर पूरा लाभ नहीं। अगर आप निष्काम भाव से सेवा करोगे क्या मिलेगा? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। भगवान स्पष्ट रूप से क्या कहते हैं? अगर आप निष्काम भाव से सेवा करोगे तो एक लाभ मिलेगा, और साकाम भाव से सेवा करोगे तो दूसरा लाभ मिलेगा। भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अगर तो हम तन मन धन से मेरी सेवा में जुड़ोगे फिर मैं तो सुरक्षा करूँगा। भगवान ये नहीं कहते हाँ जो करना है करो, जो गारंटी मिला हुआ। ओके, वी शुड ट्राई टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन फिलॉसफी। यस, एक और प्रश्न। दूसरे ले लें फिर आपके पास। यस, we have to be a little louder. Now there's more noise. महाराज, गृहस्थ भक्ति के लिए जैसे आपने समझाया कि सर्व धर्म परित्यज्य, बस अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में जितना ज़्यादा लगा सकते हैं उतना लगाना है। मतलब तो एक गृहस्थ भक्ति के लिए जो जॉब करता है या फिर किसी चीज़ में इंगेज है, तो कई बार ज़्यादातर टाइम राजसिक गुण में रह के उस कार्य को करते हैं, तो उनको किस तरह से प्लान करना चाहिए? मतलब अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए जिससे पूर्णतः अपने इंद्रियों को लगा सकें, या फिर जॉब को इस तरह समझ गया। भागवतम के 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा हमें बताइए कृपा करके कि हम जो गृहस्थ आश्रम में हैं किस प्रकार जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि युधिष्ठिर के पास ज्ञान नहीं था, वो हमारी भलाई के लिए उन्होंने पूछा। तो नारद मुनि ने क्या कहा? सबसे पहले उन्होंने कहा जो गृहस्थ है उसे कुछ कमाना चाहिए, नौकरी या धंधा करना चाहिए। फिर इसका जो नतीजा है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, यानी कि हमें भोगता। और फिर समय संतों की संगत में बिताना चाहिए, क्योंकि संतों की संगत में रहेंगे तो उन्हें शिक्षा मिलती रहेगी किस प्रकार आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में हर प्रश्न का उत्तर है और हर विषय का ज्ञान है। तो दिस इज इन 17th chapter, 9th canto, 7th canto, I'm sorry. Okay, any more? Yes. हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद, बहुत सुंदर अपने आज प्रवचन किया। मेरा एक प्रश्न है महाराज कि जिस प्रकार प्रहलाद महाराज को बहुत ज़्यादा रुचि है भक्ति में, तो हम लोगों में उतनी उस
प्रकार से रुचि कैसे आ सकती है? हम लोग समझ गया। अगर आप सब श्रद्धा के साथ प्रभुपाद जी ने जो नियम दिए हैं उनका पालन करोगे तो आपको भी वही लाभ प्राप्त होगा जो प्रहलाद महाराज को प्राप्त हुआ। कोई नहीं। हरि नाम में उतनी शक्ति आज भी है जितनी हजारों साल पहले थी। माया देवी आई थी हरिदास को आकर्षित करने के लिए। हरिदास जुड़े हुए थे नाम के उच्चारण में। अंत में माया देवी असफल थी। तो प्रभुपाद जी ने अनेक समय कहा है पत्रों में, अगर तुम 16 माला का जाप करो, नियमों का पालन करो, तो बिना शंका के यू विल गो वेयर बैक टू गॉड। तो बाकी जो आगे प्रश्न था, नौकरी करना, धंधा करना, छोड़ना, वो हर फैमिली अपने आप एनालाइज कर सकते हो। इतना डिटेल शास्त्र में नहीं है कि आप शरणागति को ये करना चाहिए तो आपको ये करना चाहिए। Scriptures give us broad guidelines. Then we have to use our intelligence. Okay? Any? Yeah. Quick. हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे अभी आपने श्री मुख से कहा कि इंद्रियों को संयम करते हुए श्री भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके चरणों में हमारा राग रहे हर वक्त। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही श्री गीता में दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में कहते हैं, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथि हरन्ति प्रसभं मनः। ये इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान होती हैं कि जब कोई विवेकी पुरुष होता है इतनी वेग के साथ उसके विवेक को भी हर लेती है। तो उससे ओवरकम कैसे किया जाए, मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहूँगा। भगवान गीता में कहते हैं, देवेश गुणमाय मम माया गुरुदया। ये माया का विरोध करना बहुत ही कठिन है। आप कहोगे तो भगवान कहते हैं कठिन है, तो हमारे लिए क्या उम्मीद हो सकती है? आगे भगवान क्या कहते हैं, मोह में पते दे माया में ताम। अगर मेरे ही शरण में आओगे तो माया का प्रभाव तेज है, तो भक्ति इज स्ट्रोंगर देन माया। हरि नाम में, शास्त्र के अध्ययन में, साधु संग में, भगवान के आचार्य विग्रह की उपासना में, इन कार्यों में बहुत शक्ति है। और अगर आप श्रद्धा से इन नियमों का पालन करोगे तो आप माया को बड़े आसानी से क्या करोगे, डिफीट। हम प्रभु जी कहते थे, वी आर एट वॉर अगेंस्ट whom? We're war against Maya. We have to be always alert. Okay? Any more? Yeah. हरे कृष्ण महाराज, जो श्रद्धा की और इसकी बात हो रही थी, तो प्रहलाद महाराज ने शुद्ध प्रसाद पाया था, तो काफी उनको पिछले जन्म से प्राप्त हुई थी। हम तो यहाँ पा रहे हैं कि भारत संसार में जो जैसे वर्तमान में जो औषधियाँ हैं, खाद्यान्न वगैरह हैं, जैसे सुनते आइसक्रीम्स वगैरह, इस सब में भी जेनेटिक होता है, वर्षा से प्राप्त औषधियों में है, मॉडर्न वैक्सीन्स में है, जाने में भक्त लोग ले लेते हैं। तो इनसे महाराज जाने में भी लेने से क्या भक्ति में बाधा आती है? श्रद्धा जो हमें अर्जित हुई है गुरु कृपा साधु कृपा से। Artificial ingredients in food stuff which devotees have knowingly or unknowingly. Artificial ingredients. Maharaj, they use cow products like in vaccines and all. Sometimes devotees also take. Not just vaccines, Maharaj, like we know that ice cream also contains gelatin. He preaches pure cow products. But the cows got the right items which are there in our medicines and our food items also, which
devotees take a lot of time. So do they hinder in a Shraddha and a Bhakti? Our endeavor should be to avoid anything that is sinful and हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम जो शुद्ध इंग्रेडिएंट्स है उनको नहीं खाएं. Now specifically what this ingredient is, what that is, that you have to discuss. It's just a broad guideline. Okay, just one more. Any more question? Yeah. जैसे आपने बताया कि मंदिर में जाना है और अपने अधिकारियों से पूछना है कि 125th एनिवर्सरी पे प्रभुपाद के लिए क्या करें. हमारा मेरा प्रश्न था, चाहे 125th एनिवर्सरी हो या भगवदगीता मैराथन हो, तो अब हमारी इच्छा रहती है कि डिस्ट्रीब्यूशन करें, जैसे आप भी करते हैं और हमारी पर्सनल इच्छा भी होती है, लेकिन मंदिर की तरफ से अधिकारियों की तरफ से कुछ और सेवा होती है जिसकी वजह से हम डिस्ट्रीब्यूशन में बाहर नहीं जा पाते. पूरा टाइम मंदिर में के होते सेवा हो गया उस केस में क्या? So, no. तो हमें ये विश्वास करना चाहिए कि जो मैनेजर हैं, जो बोल रहे हैं हमारी भलाई के लिए और पूरे बंदर की स्थिति को देखते हुए, हम कई बार एक ही कार्य के महत्व को समझ सकते हैं. तो जो मैनेजर हैं यूजली उनका अभ्यास थोड़ा ज़्यादा होता है. पर आप डिस्कस कर सकते हो, उनसे कह सकते हो कि हमारी रुचि इसमें है, और देख सकते हो. ओके, यस, क्विकली देन वी विल स्टॉप. जो मीडियम सर्विसेज मैंने सुना है बहुत प्रभावकारी है, तो मीडियम सर्विसेज किस मोड से करते हो और फिर उसका फायदा क्या होता है, और हायर सेवा भी किस मोड से करना चाहिए और फायदा क्या होता है, मतलब डायरेक्ट सेवा. देखिए, Menial service किस मोड में करना चाहिए? मीनियल सर्विस, कई बार हम सोचते हैं हमें सेवा चाहिए, हमें साहब की सेवा चाहिए, यहाँ हम साहब बनेंगे, हुक्म चलाएंगे, ये करो ये करो ये करो. और अगर आपको तुझ सेवा दी जाए, झाड़ू दो, खटका मारो, रसोई बनाओ, तो क्या कहते हैं, हम क्या भंगी का काम करने आए थे इसको, हम कोई साहब की सेवा दो. तो भक्ति के मार्ग में अगर आप तुझ सेवा करोगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा. और भक्ति के मार्ग में चाहे आपकी तुझ सेवा हो या साहब की सेवा हो, एक ही प्रकार का लाभ मिलता है. ये मैं सोचो कि साहब की सेवा मिलेगी तो ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. ये देखना है, वी सर्व एज नीडेड. फौज में आपको बोला जाए जाओ कश्मीर बॉर्डर में, तो आप बहस कर सकते हैं, नहीं जाना ही पड़ता है. ओके, तो भागवतम सेट्स करोगे आप लोग बरदापुर में. लास्ट क्वेश्चन गो. गुरु महाराज, जैसे हम लोग जिस आश्रम में स्थित हैं, तो हमें तो बहुत कुछ मिलता है, तो इतना कुछ मिलता है कि उसको हमारा स्वभाव बन जाता है कि उसको हम महत्व नहीं देते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके प्रति हमारा आकर्षण बना रहता है. तो इस द्वंद्व से कैसे बाहर निकला जाए? जब आप कहते हो जो चीज़ नहीं है, उसका मतलब क्या है? कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है अपनी, हमें भी मर्सिडीज गाड़ी रखनी चाहिए, तो ऐसे आप कहो हम बुझाई का काम करेंगे, हमको साथ में एक मर्सिडीज भी चाहिए, ये भी चाहिए. सादा जीवन, ऊंचा विचार. Any other question? So
Thank you very much.